हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। अभी तक हमने रेशनल नंबर्स के बारे में सीख चुका। आज हम इरेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज इरेशनल नंबर? डिफिनीशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर which cannot be expressed in the form of P by Q and Q equal to not 0. But this will be somewhat confusing for you. For that, a simple definition may be like this: any number, any positive number which is not a square of any number and the root of that number, the root of that number means a, it means a will be the irrational number. Irrational number like root 2, root 3, root 5, but root 4. What is there? Here 4 is a square of number 2. So root 4 will not be irrational number. Root 3 by 2, root 7 by root 5, minus 3 by root 7. These all are the irrational number. Simple. Any number which is not a rational number, that will be irrational number. We can say also like this, or we can say any number which is not a square of any number, root of that number will be irrational number. This is the simplest definition of irrational number. Now we will see how an irrational number will be represented on the number line. For that, इस चीज के लिए कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, हमारी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो कि हमें क्लियर होना चाहिए। अब हमने अभी तक में जाना होगा या पढ़े होंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये लिखा हुआ है हमने पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड ऑन एनी राइट एंगल triangle. What happens in a right angle triangle? Right angle triangle has three components. What are these? First one is hypotenuse, second one is base, and third one is perpendicular. It means any triangle which is having a angle of 90 degree, it means right angle, that is called right angle triangle. And we know the formula that h square equal to base square plus perpendicular square. So h will be under root base square plus perpendicular square. This formula will help us to find out an irrational number on a number line. Suppose we want root 5, root 3, root 18, root 20, root 12 on a number line. How we will represent? As we have discussed here, h equal to root b square plus root under root b square plus
root p square. So suppose that we want root 18. How we can write it? We can write it under root 4 square plus under bracket root 2 square. What it will be? It will be under root 16 plus 2 equal to root 18. Same way, root 20, what it will be? Under root 4 square plus 2 square, it means 16 plus 4, that is under root 20. Same way, 12, what is here? Under root 3 square plus root 3 square. What it will be there? Under root 9 plus 3, that is root 12. So to depict or to represent on the number line, what is there? First, we will understand how to represent root 2 on number line. Root 2 on number line. So how can we write the root 2? Root 2 can be written as per the Pythagoras formula. How we can write it? Under root 1 square plus 1 square. Here, यहाँ हमने क्या किया? अब हमने एक लाइन ले लिया. We have taken a line of 2 centimeter 1 unit. We have made 2 centimeter 1 unit. So we have taken 0 to 2 centimeter as 1 unit. That is, suppose that it is base. Same way में 1 unit हमने यहाँ भी ले लिया. This is perpendicular. Now, what will be root 2? We taken here that under root 1 square plus 1 square. If we match this hypotenuse here from this point to this point, it means it is hypotenuse. Hypotenuse will be root 2. Here we have seen that under root 1 square plus 1 square, that is root 2. This is root 2. If अब हमें यदि बोलेगा कि कोई डिपिक्ट करो इसको कि रूट 2 कहाँ पड़ेगा नंबर लाइन पे, तो हम चैप से इस दोनों को ले लिए ऐसे, और यही चैप हम ऐसे खींच दिए यहाँ पे. तो ये जो हमारा कट पोर्शन आया नंबर लाइन पे, दिस विल बी, यानी कि इट मीन्स this point is root 2. This is root 2. Now, अब यदि हमें कोई बोले कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट रूट 3, तो अब हमारे पास एक है कि हमें रूट 2 पहले से मिल चुका हुआ है. यदि नहीं, हम ऐसे भी नहीं चाहते, तो हम फिर क्या करेंगे? ये जो रूट 2 वाला हमारा जो है, इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ले लेंगे. कितने का? 1 यूनिट का. तो हमने लिया है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 1 यूनिट. हम यहाँ पे या तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ये पॉइंट. अदरवाइज हम क्या करेंगे? रूट 2 से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ले लेंगे. रूट 2 से हम एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लेंगे. ठीक, और हम इसको ऐसे मैच कर देंगे. ठीक है. अब इनको 0 से हम यहां से इसको हम मिला देंगे. तो ये जो हाइपोटेनियस बन गया हमारा, ये हाइपोटेनियस क्या बन गया? What we see here? Root 3 equal to under root 2 square plus 1 square. It means under root 2 plus 1, that is root 3. तो अब ये जो हमें मिला, अब हम इसका चैप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, ये देखिए ले लिया है. अब हम इसी को, इस चैप को ऐसे इस पे डिपिक्ट कर देंगे. तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो कट पॉइंट है हमारा, ये कट पॉइंट,
दिस विल बी √3। अब हमें कोई बोल दिया √18, तो हमने यहां देखा है कि √18 इक्वल टू व्हाट, √4² प्लस √2²। तो वी आर हेयर गिवन दैट ये है हमारा नंबर 4 का पॉइंट, 4 यूनिट का। अब यहां से हमें कितना लेना है, √2, तो √2 हमको ये मिला हुआ है, यदि हमको पहले से मालूम है तो, नहीं तो हम एक √2 बना लेंगे, और √2 का जो पोजीशन है, ये लेंथ इसको हमने चैप पे ले लिया, और यहां से रख के 4 के पॉइंट से रख के यहां पे हमने इसको पिक कर दिया इससे, और इसको हम अब मिला देंगे। अब ये हमारा हो गया। अब इसको, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम 0 से मिला देंगे। अब ये आया, इसको हम ऐसे चैप से ले लेंगे, ले लिए, ये रहा हमारा। अब इसको हम ऐसे नंबर लाइन पे कट कर देंगे, तो ये जो कट पोर्शन हमारा नंबर लाइन पे आया, दिस कट पोर्शन, दिस विल बी √18। सेम वे में यदि हमको कोई √12 बोला, तो √12 का क्या हम लोग देखें अभी, √3² प्लस √3²। हालांकि हमने यहाँ √3 का निकाल लिया है वैल्यू, कि ये हमारा √3 पॉइंट है, ये वाला, यानी कि दिस। तो हम इस चैप को ले लिए, 3 वाले को, अब हमने देख लिया 3² प्लस √3²। यहाँ 3 पर हम आ गए, और यहां पर एक पॉइंट लगा दिए। अब 3 से हम इसको मैच कर देंगे, और इस पोर्शन को हम 0 से ज्वाइन कर देंगे, और इसका हम चैप ले लेंगे। ले लिया। अब हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे डिपिक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा कट पोर्शन आया, दिस कट पोर्शन, दिस विल बी व्हाट, √12। लाइक दिस, यदि हमें कोई भी कितना भी नंबर बोले, √100 ही हमें क्यों ना बोल दे, तो हम √100 को कैसे निकालेंगे, दैट इज 10। तो हम 10 सीधा लिख देंगे। लेकिन यदि हमें कोई 101 बोलेगा, तो √101 बोलेगा डिपिक्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, √10² प्लस 1²। तो हम यहाँ पे 10 का वैल्यू ले लेंगे, वहाँ से 1 यूनिट ले लेंगे, इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, फिर उस चैप से हम इसको नंबर लाइन पे कट कर देंगे। दैट विल बी 101 ऑन द नंबर लाइन। कोई दिक्कत? I think this will be very helpful in your coming examination with the 3 to 5 marks. Thank you.